First of all, good afternoon to all of you, my dearest teachers, as well as my colleagues, and my so experienced and laborious teachers, Miss Afsana ma'am, and Director sir. Today's topic is teaching and learning style. So, first of all, we should know the words teaching and learning, and after it, we will know what is the style of learning and teaching. So, I hope you will listen it carefully and will give the feedback. First of all, I want to tell about the teaching. Teach is the verb, and when we add ing in teach, it becomes teaching, and teaching is also becomes a verb, and teach is also a verb. When we add ing, it also becomes a verb. When we use the teaching words just before a noun, it becomes an adjective. And when we don't use noun after teaching, it becomes a verb. And when it is used at the place of subject, it becomes a noun or noun equivalent. So, a teaching word is not an ordinary word, it's a very remarkable word. So, we should try to understand this word. I am speaking about the words, so I am an English teacher. So I want to try you to, first of all, you should know what is the word and why this word is used in English dictionary. Teaching, as we know that there are so many words in the world, but according to our works, we have divided it into 8 parts. That is called parts of speech. And these parts of speech is used in the English dictionary according to our efforts. Means we have made it 8 types of parts of speech. In this, teach is a verb that is also a part of a speech of the words in the dictionary. Teaching is not a very easy in any academy. Teaching and learning is just as I have told you the teaching, in the same way, learning is also a verb, and when we add ing, it also becomes a verb before. Ing means before, and noun or noun equivalent or adjective. When we just use after helping verb, it is before, and when we use after a noun, before a noun, it is an adjective, and when we use at the place of a subject, it is also a noun equivalent and work as a noun. Teach and teacher. There is a little difference in teach or teaching and teacher.
When we add ing, it becomes teaching, and when we add er, it becomes teacher. So, without teaching, teacher and teaching is not possible. But it is the matter of the grammar. Now we are coming on the topic, our teaching and learning style. What is a style? What is a style? Today we will discuss what is a style. When we go in the classroom, I hope you will understand. The matter is, I hope the matter is not tough, and I don't express my knowledge. I want to show the simple sentence and words so that there will be no hesitation and no problem to understand. So it will, you won't get problem to understand my speech. And I am not a principal and other authority that I can speak the sentences that you cannot understand. But the matter is not so that I don't speak Hindi. I speak not only Hindi but also Bhojpuri, and I am an expert speaker of the Bhojpuri, not the Hindi and English. But today I will speak Bhojpuri as well as English or Hindi. But the topic is going on. What is a teacher? And what should be the nature of a teacher? We know water. Everyone knows water. What is the nature of a water? The nature of the water is that will be cold or warm or hot. It will put out the fire. आग को बुझा देती है. In the same way, if teacher is cold or warm, it don't harm the students. Both are the same nature. Both are the same nature. If the teacher becomes angry, if a teacher becomes angry, and very in a very nervous mood, we should not kill or give the problem to the students. It's the other nature. I mean, you will understand what is the nature of water. Water, if you make the water hot and you pour the water on the fire, what will be result? पानी को यदि हम गर्म पानी को भी हम आग पर गिराते हैं तो क्या उसका असर होगा? पानी भी गर्म हो तो क्या होगा? आग को बुझा देगा. ठंडा भी है तो आग को बुझा देगा. उसी तरह हम लोगों का भी नेचर होना चाहिए. यदि हम गर्म भी, हमारा मूड गर्म भी है, क्लास में जाते हैं तो बच्चों को क्या करें? आप मारे फटकारे नहीं. ठीक, आप जिस तरह पानी ही उस कितना हो कुछ होता है फिर भी उस आग को बुझाने का काम करता है, उसी तरह हम लोगों का भी नेचर होना चाहिए कि हम यदि कितना हो गुस्से में हैं तो बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए कभी भी. तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे, हम लोगों को तो रामायण का ज्ञान है नहीं, महाभारत का ज्ञान है नहीं, लेकिन बीच बीच में कुछ प्रसंग चलता रहेगा कि मन लगता रहे. कहे कि आप लोग कहिएगा कि सर
परेशान कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। नहीं, सीता जी को रावण ने हरण करके ले गया ना। मौलाना जी नहीं आए थे, इसीलिए इस प्रसंग को हम फिर दोबारा चालू कर रहे हैं ताकि मौलाना जी को भी मन लगे। हाँ, तो राहुल सर नहीं है, वो थोड़ा डीप ज्ञान था, इसीलिए हम कोशिश कर रहे थे, आते तो और अच्छा लगता। लेकिन अभिषेक सर हैं तो प्रसंग आगे बढ़ता रहेगा। तो रावण किस व्यू से, आप सुना में किस व्यू से, हाँ, कोई क्या कारण था कि रावण वहाँ से उतना परेशानी झेल करके और सीता जी के पास आया, उतना रूप रंग बना करके और श्रीलंका ले गया? आखिर कोई कारण होगा ना। आखिर कारण क्या है? क्या कारण होगा? क्या आप जवाब दे देंगे? आखिर कोई कारण होगा ना। आखिर क्यों इतना मेहनत किया? मेहनत करने के पीछे कोई ना कोई कारण होगा। क्या कारण था? है कोई ना कोई कारण होगा ना। आखिर सीता जी को क्यों ले गया? देखिए, अभिषेक सर को बहुत ज़्यादा ज्ञान था, इसीलिए वो थोड़ा ज़्यादा, हाँ, हम लोगों को ज्ञान है। क्या कारण है? आखिर कोई कारण होगा ना। आखिर अपहरण क्यों करके लेगा? अपहरण ना किया। रुद्र सर से नहीं पूछ रहे हैं, रुद्र सर को ज्ञान है, वो बताएंगे, लेकिन आप लोग बता सकते हैं आखिर ले क्यों गया। चलिए, कोई बात नहीं है, अफसाना में बता सकती हैं। नहीं, आखिर क्या उसके मन दिल दिमाग में था कि उस बेचारी का कष्ट दूर कर दिया? नहीं, आखिर कोई ना कोई कारण होगा ना। चलिए, कोई बात नहीं है, हम लोग स्टाइल पर पढ़ेंगे। जैसे हम क्लास में घुसते हैं, सुनिए, स्टाइल क्या है, कारण क्या है। चलिए, आखिर जवाब का आंसर देना चाहिए। देखिए, आखिर वो तो रानी थी, राजा की बेटी थी, और वो जंगल में घूम रही थी, नहीं पैर में चप्पल था, नहीं कुछ था, कांटा हल रहा था, कपड़ा पहनने का नहीं था, खाने का नहीं था। तो अब उसको लगा, रावण को लगा कि, देखिए अभिषेक इब्राहिम सर, रावण को लगा कि शायद ये बेचारी को बहुत कष्ट है इस जंगल में, इसीलिए वो सोचा कि बेचारी राजमहल की ये लड़की है तो ये जंगल में क्यों भटक रही है। इसीलिए उन्होंने उसको बहुत दुख लगा, और उस दुख, अब वो दुख लगा ना तो सोचा बेचारी कि इतना कष्ट सहेगी, खाना पीने का नहीं मिला, धूप में रह रही, चलो राजमहल में बैठ जा, कुछ दिन तक तो रहेगी, फिर वनवास खत्म होगा तो चली जाना अपने जहाँ की है वहाँ। तो उस बेचारी को समझ में आया नहीं, वो अब गई तो उसको लगा दूसरा ही कुछ समझ ली, उसको जाना चाहिए, राजमहल में रहना चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए। फिर आने के समय में क्या करती, फिर सुख अपने से क्या करती, एक दुपट्टा लेती, मुंह बांध लेती, और क्या था वो पुष्पक विमान में बैठ करके फिर राम के पास चली जाती। न रास्ते में कोई पहचानता, न वहाँ कोई पहचानता, राम के पास भी पहुँचा देता। नहीं क्या मौलाना जी, राम के पास भी आ जाती और सुख सुविधाएं जो होता है वो भी मिल जाता। चलिए, कोई बात नहीं है, हम कुछ नहीं कहेंगे। अब चलिए, हम जैसे टीचिंग क्या है, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, हम लोग टॉपिक बात हैं। टीचिंग जो है, आप बच्चों को क्या करेंगे, जैसे आप क्लास में जाते हैं, बच्चों को आप पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे, बच्चे वो पढ़ते हैं। एक ये टीचिंग क्या है, एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है जो शुरू से लेकर के आज तक चलती आ रही है और चलती रहेगी। प्रक्रिया है कि प्रक्रिया है, क्या है, प्रक्रिया है, प्रतिक्रिया नहीं है। प्रतिक्रिया में या प्रक्रिया में अंतर होता है। प्रतिक्रिया क्या होता है कि जैसे हम अब देख रहे हैं, अब अप्सरा में चाहे किसी को देख रहे हैं, देखते देखते प्रतिक्रिया चालू हो जाएगा, तो वो परसा नहीं खड़ा जाएगा। प्रक्रिया जो क्या है कि जैसे हम पढ़ा रहे हैं, अब पढ़ाने के समय में देखिए, समझ रहे हैं, प्रक्रिया समझ रहे हैं ना। प्रतिक्रिया रिएक्शन, जैसे क्या आसिफ सर, जैसे केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे हम आपको लगातार देखते रहेंगे तो आप भी लगातार देखने लगिएगा, तो ये रिएक्शन, अट्रैक्शन बढ़ेगा, ये रिएक्शन पैदा होगा। प्रक्रिया क्या है, जो अनवरत चलता रहता है, वो
आपके रहने नहीं रहने से कोई असर नहीं पड़ेगा, हमारे रहने नहीं रहने से कोई असर नहीं पड़ेगा। वो प्रक्रिया हमेशा चलेगा और अनवरत चलेगा और बच्चे सीखते रहेंगे, हमेशा सीखते रहेंगे। चाहे वो प्रक्रिया आपके समाज में चले, चाहे स्कूल में चले, चाहे घर में चले, चाहे आपके पास पर चले, लेकिन ये प्रक्रिया है टीचिंग एक क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस जो हमेशा के लिए चलता रहता है। समझ गए ना? और कोई दिक्कत? साउद्दीन सर, अब इस प्रक्रिया को चलाने के लिए देखिए सबसे बड़ी चीज़ तो हम ये कहेंगे कि ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को चलाने के लिए सब लोग जिम्मेवार है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी हम ही लोगों को, टीचर को ही होती है इस प्रक्रिया को चलाने के लिए। इसीलिए ये जो सिस्टम चला है ट्रेनिंग कराने का या करने का, जो बहुत ज़रूरी चीज़ें होती है। और आपको एजुकेशन में रहना है और चाह रहे हैं कि करियर बनाना है, तो ट्रेनिंग, बगैर ट्रेनिंग का जीवन इसमें नहीं चल पाएगा, ट्रेनिंग करना होगा। ठीक है, इसलिए हम सलाह देंगे कि आप लोग कम से कम ट्रेनिंग जरूर कर लीजिए, इसके जैसा बचपना दिमाग हटा करके और टीचर के जैसा। ये ट्रेनिंग कर चुका है, इसीलिए हम कहें कि सब लोग ट्रेनिंग कीजिए, बगैर ट्रेनिंग का काम नहीं चलेगा। और ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, यदि रहना है इस क्षेत्र में तो, नहीं तो कोई बात नहीं है। क्या तो स्टाइल क्या है? सबसे पहले तो हम मेथड पे बात करेंगे। आखिर टीचिंग, हम लोग ये जो टॉपिक है, आखिर क्यों हम लोगों ने ये टीचिंग की व्यवस्था है या टॉपिक क्यों है? तो सबसे पहले तो एक ये चीज़ है कि टीचिंग हम लोग समझ गए एक प्रक्रिया है जो हमारे रहने नहीं रहने से कोई असर पड़ेगा नहीं, वो चलते रहेगा। फिर भी हम लोग हैं या हम लोग उस प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो हम लोग का जिम्मेवारी बन जाता है कि उस प्रक्रिया को अच्छा से चलाना। टीचिंग को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे मेथड्स बने हुए हैं, ठीक ना? हमने सॉफ्टवेयर, कुछ इंग्लिश का गायब हो गया है, आप लोग चाहिएगा तो चालू हो सकता है। तो क्या हुआ, हम लोगों ने क्या किया, सॉफ्टवेयर ये इंग्लिश, ये जो टीचिंग मेथड्स हैं, इसलिए मेथड्स का प्रयोग किया गया कि ताकि जो हमारा टीचिंग का सिस्टम है वो अच्छा से और आगे बढ़ते चले और आसानी से हम लोग आगे बढ़ाएं। इसलिए बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे लेक्चर मेथड्स होता है। जैसे हम लोग क्लास में जाते हैं ना क्लास में, तो क्लास में जाते कहते हैं एक डिक्टेटर के जैसा, है बंद करो, बुक खोलो, ये चैप्टर कहाँ तक पढ़ाई हुई थी, खोलेगा कि खुलवा दें? ये नहीं होनी चाहिए। एक ऐसा सिस्टम से ये टीचिंग मेथड्स, ये इस तरह नहीं होना चाहिए। हम लोग कहते हैं ना खोलेगा कि खुलवा दें, तुरंत खोल लेगा, देर नहीं लगेगा खोलने में, लेकिन ये नहीं होना ऐसा। इस तरह से उससे बात कीजिए, ऐसा बात कीजिए कि आप उस जगह पर आ जाए, ठीक ना? एक बार बैसाख के दिन था, बैसाख में रमाकांत सर जानते होंगे, रमाकांत सर के घर इधर है। तो बैसाख में कोंकड़ी होता है, बहुत लंबा लंबा इतना बड़ा होता है, बैसाखे में फड़ता है ना, और लालमी ओलमी होता है। तो साजिन सर कोंकड़ी जानते हैं ना? आपके यहाँ नहीं होता होगा, इधर होता है, लंबा लंबा और इतना बड़ा बड़ा। हाँ, हंसना जरूरी है नहीं? तो क्या किया, एक आदमी को भूख लग गई। गर्मी के दिन में बहुत भूख लगती है, पसीना आता है, प्यास भी लगती है। तो सोचा कि जाए खाएं, तो खेत में रखवार था, कहा गया और इतना ही दिन में तोड़ लेगा, नहीं दिया। तो सोचा कि चलो भाई दिन में ना दिए, रातों में कहाँ जाइए। और बेचारा क्या किया, चल दिया। आज तो हम मानिए तुरिये के मानेंगे, ले लिया खूब बड़ा चौड़ा लंबा बोरा। कोंकड़ी तो होता है बहुत भारी ना होता है, कोंकड़ी एगो दूगो लेके भाग सकते हैं। कोंकड़ी समझती है ना, कुकुम्बर एंड वाटर में टॉपिक। तो जब वो ले करके गया, सुनिए ना, हाँ, तो रखवार को भी पता था कि मानेगा नहीं, दिन में नहीं दिए तो रात में जरूर आएगा। तो वो प्रतीक्षा करके बैठा था।
अब ई तो बेचारा गया, अब ई तो गया, ठीक ना। तो अब वो झुके लगा था, अब बेचारा अब वो सोच रहा था खेत वाला सोच रहा था कि यदि अभी हम इसको पकड़ते हैं तो कहेगा कि हम घूमने आए हैं, तूरे नहीं हैं। तूर लेता है तो अभी इसको पकड़ते हैं। आज तो तोड़ने गया था तो पकड़ लिया, तोड़ते में पकड़ लिया, तो पकड़ नहीं लिया, अलग से देखा तो उस तोड़ने वाला भी देख लिया कि भाई तो देख रहा है नहीं, तो भागने लगा। अब बैसाख में खेत जोता जाता है फार से, लोहिया से, तो इतना इतना चेका वो सब खेत में रहता है, बैसाख में चारों तरफ खेत जोता जाता है। तो भाग रहा था, तो खूब खेदा खेत वाला। इहो भागने में तेज था, तो भागते भागते कुछ आधा रास्ता में गया तो कह रहा है खेत वाला कि आज तो इनका खूब खेदा ढेले ढेले। तो वो कह रहा है, रुक गया, कहा कि तू अपने बाबू के पीछ में दौड़ता रहो, तू तो यही में दौड़ता रहो, जगह हम पीछ में दौड़ता नहीं वही तू दौड़ता रहो। हाँ, तो जैसा अगला करेगा तो पिछला को भी तो वही करना होगा। चलिए कोई बात नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले अब आएंगे टीचिंग स्टाइल क्या है। मेथड तो समझ में आ गया कि ये टीचिंग को आगे बढ़ाने के लिए, इस सिस्टम को सुचारू रूप से आसानी से आगे बढ़ाने के लिए जिस मेथड का प्रयोग किया जाता है बच्चों को डेवलपमेंट के लिए, जैसे हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं ना बच्चों का, तो बच्चों का डेवलपमेंट कराने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उस विधि को मेथड्स कहा जाता है, ठीक ना। अब स्टाइल क्या हुआ? अब स्टाइल हो गया, जैसे हम क्लास में गए तो अब जाते अब पका हुआ बैगन की तरह मुंह बना लेंगे, बस बच्चा क्या करेगा, वो चुपचाप हो गया, बुझेगा आ गया आफते आ गए आज। तो आप क्या करेंगे? पका हुआ बैगन नहीं, एकदम कांचा बैगन की तरह ताज़ा मुंह करके एकदम हंसते खिंचते आप एंट्री करेंगे, वो स्टाइल होता है। और नहीं तो हो गया कि आज सर का तो चोखा बना ही है मुंह का, हम लोगों का भी हो गया आज उपाय है। तो स्टाइल क्या है? उस मेथड को भी और आसानी से, समझ रही है ना, उस मेथड को भी और आसानी से आगे बढ़ाने के लिए जिस चीज़ का प्रयोग किया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? स्टाइल। वही चीज़ जो है अंदाजा को स्टाइल बोलते हैं। ये नहीं है कि बस गए डांटा लिए डिक्टेटर के जैसा, भाई ये करना है वो करना ही है, तो ऐसा चीज़ नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन में ये चीज़ नहीं होगा, आपको ज़बरदस्ती करने से कुछ नहीं होगा। समझने वाले धीरे धीरे समझ रहे हैं। आप जाते बच्चा को बोरा समझ लीजिए, नमक का बोरा है जहाँ है वहीं रहेगा, तो ऐसा नहीं होगा। बच्चे क्या हैं? वो जीवित चीज़ हैं, वो नमक का बोरा या कुर्सी नहीं है कि जहाँ रख देंगे वहीं पर वो रहेगा। उसके अंदर जीव है, उसके अंदर ये कॉमन सेंस है। आप पढ़ाएंगे, आपको हमको आप पता नहीं लगा सकते हैं कि सर को क्या आता है नहीं आता है। आप एक सप्ताह चले, बच्चे बहुत कुछ आपके बारे में जान सकते हैं। तो मेरे कहने का यह है कि जब भी आप एंट्री करें क्लास में, ठीक है ना, तो बस हंसते मुस्कुराते नहीं और जाएं, पढ़ाएं। और गुस्सा हो तो समझिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश जरूर कीजिए आखिर इस गुस्सा से फ़ायदा या नुकसान है। यदि आप किसी चीज़ को मारने जा रहे हैं, किसी बच्चे को मार रहे हैं या डरवाना ज़रूरी है, ये नहीं है कि एकदम छोड़ दीजिए, तब तो काम सिस्टम से बाहर चला जाएगा। लेकिन यदि सोच लीजिए इस मारने से नुकसान है या फ़ायदा है, तो आप उस पर थोड़ा सा स्टेप लें, ठीक ना। मारने से नुकसान होता है, फ़ायदा होता नहीं है। तो सबसे पहले हम लोगों ने अब पढ़ेंगे टीचिंग का जो मेथड्स होता है। पहले टीचिंग कितने तरह का होता है, नहीं मेथड्स। आखिर हम लोग जब क्लास में चल रहे हैं पढ़ाने के लिए, तो ये मेथड्स होता है, हर सब्जेक्ट का मेथड्स होता है। हिस्ट्री का ही मेथड्स होता है, इंग्लिश का ही मेथड्स होगा, साइंस पढ़ा रहे हैं उसके लिए होगा, मैथ होगा उसके लिए होगा। आखिर जो साइकोलॉजिस्ट है, सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट जो लोग होते हैं, साइकोलॉजी जानते हैं आखिर हम लोगों को ये मेथड्स क्यों दिए। ये मेथड्स देने का आखिर कोई ना कोई तो रीज़न होगा। वैज्ञानिक जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो वैज्ञानिक ही होते हैं, वो बहुत सारी चीज़ सोचते हैं। आखिर बनाने के पीछे कुछ मकसद होगा, आखिर इस विधि को क्यों बनाया जा रहा है। नहीं, बनाने के पीछे मकसद ये है कि जो भी आप सिस्टम चला रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, वो अच्छा से चले, इसलिए इस चीज़ को किया जा रहा है। तो सबसे पहले टीचर जो है, टीचर को होना क्या चाहिए? साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए।
मनोवैज्ञानिक होना चाहिए, या उसको ये भी कह सकते हैं मनोचिकित्सक कह सकते हैं, ठीक ना। ये रिवार्ड बहुत अच्छा है। तो ठीक ना। तो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं कि टीचर को क्या होना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए। जैसे आप छोटे छोटे क्लास में जा रहे हैं या जाते समय बच्चे, तो वो हम लोग क्या ट्रेनिंग देते हैं, क्या सीखते हैं, उससे उसको कोई लगाव नहीं होता है। फिर भी टीचर को साइकोलॉजिस्ट के जैसा काम करना चाहिए ताकि क्लास सुचारू रूप से चले। तो इसके लिए टीचिंग कुछ मेथड्स बनाए गए हैं, 3-4 मेथड्स हैं। वो बहुत ज़रूरी चीज़ें होती है जो बच्चों को टीचर को जानना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे क्लास में बैठ रहे हैं तो उसका एक ही काम होता है, हाउ टू लर्न। टीचर का काम होता है कि हाउ टू टीच द स्टूडेंट्स, एज वेल एज स्टूडेंट्स आर लर्निंग और नॉट, it is the responsibility of the teachers. It means there are two kinds of work are of the teachers. First, how to teach, and second, the students are learning or not, it is also the responsibility of the teacher. But the student's responsibility is that only how to learn. But we are responsible for both work, teaching and learning, but students are not responsible only for one work, that is the learning. आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, बच्चों को सीख रहा है नहीं सीख रहा है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन आप क्लास में यदि जा रहे हैं तो आपका दोनों जिम्मेदारी बन रहा है। सबसे पहले तो आप कैसे पढ़ाएंगे उसको, दूसरा कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वो सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहा है, ठीक ना। दोनों काम आपके ऊपर निर्भर करता है। तो सबसे पहले जो इसमें है टीचर को, तो एक तो हो गया साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए, दूसरा है कि आपको एक्सेलेंट कम्युनिकेटर होना चाहिए। जैसे हम यहाँ खड़े हों और कुछ बोले नहीं, चुपचाप खड़े होकर 10 मिनट के बाद बैठ जाएं, तो ये सफल नहीं होगा। उसी तरह टीचर का भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कम्युनिकेट करने का। जैसे कोई चीज़ है पढ़ना पढ़ाना, किताब की चीज़ है जो बच्चों को समझ नहीं आ रही है, वो हमारा बहुत बड़ा दायित्व बनता है कि कम ही पढ़ाएं, लेकिन जो चीज़ है उस चीज़ के जो क्या सब्जेक्ट मैटर है, उस सब्जेक्ट मैटर की सच्चाई से बच्चों को समझा देना ज़रूरी होता है। ये नहीं कि सब्जेक्ट मैटर कुछ है और हम कुछ कह रहे हैं, तो ये सही चीज़ नहीं है। इसीलिए गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए, ठीक ना। तो अब हम ये कहेंगे कि कुछ मेथड्स जो होते हैं, बिसाइड दिस थिंग्स वी शुड हैव द नॉलेज ऑफ द मेथड्स। मेथड्स क्या है, सब हमने तो कह दिया कि टीचिंग करना है, क्लास में जाना है, पढ़ाना है, काम सब लोग करते हैं। ये नहीं है कि हम ही कर रहे हैं या कुछ लोग कर रहे हैं, टीचिंग करना सब कोई करता है, सब कोई जो क्लास में जा रहा है पढ़ा रहा है। लेकिन पढ़ाने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं, उस मेथड्स को जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे एक मेथड्स है डिडक्टिव मेथड्स, दूसरा है इनडिडक्टिव, थर्ड है ट्रांसलेशन मेथड, और फोर्थ है डायरेक्ट मेथड्स, और पांचवा है लेक्चर मेथड्स। लेक्चर मेथड्स, व्हेन वी गो इन द क्लासरूम एंड स्टार्ट द स्पीकिंग एंड द स्टूडेंट्स आर लिसनिंग, it is called the lecture methods. And in the lecture methods, teachers are active and students are not active, they are passive. You move here and there, students are sitting at their places and you teach, speak, you are active, your mind is active, and students are not active because they are sitting there, so they are also passive. Passive is the opposite of active. Active means सक्रिय, हम आप सक्रिय हैं, और बच्चे क्या होते हैं, पैसिव होते हैं।
क्लास में। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, लेक्चर मेथड्स पर क्या करना चाहिए, कम ध्यान देना चाहिए, और जो दूसरे मेथड्स हैं, जो डायरेक्ट मेथड्स होते हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। डिडक्टिव मेथड्स क्या होते हैं, ये साइंस के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। ये जो मेथड्स हैं साइंस में, डिडक्टिव में क्या होता है, और डिडक्टिव और इनडिडक्टिव। डिडक्टिव में पहले हम लोग रूल्स देते हैं और उसके बाद एग्जाम्पल्स देते हैं। इन डिडक्टिव में क्या होता है, इंडक्टिव में होता है कि पहले हम लोग एग्जाम्पल्स देते हैं, उसके बाद रूल्स बनाते हैं, जो बहुत वही ये जो सिस्टम होता है वो बहुत परफेक्ट होता है, डिडक्टिव और इंडक्टिव। साइंस के लिए इंडक्टिव बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। पहले आप न्यूटन्स के बारे में बता रहे हैं, उससे अच्छा है कि न्यूटन के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स है उसका फार्मूला से पहले प्रैक्टिकल कर लीजिए, उसके बाद में क्या कीजिए, तब थ्योरी दीजिए, जो बच्चों को समझ में ज़्यादा आती है। इंडक्टिव में क्या होता है, डिडक्टिव में होता है कि पहले आप नियम बता दीजिए और उसके बाद में आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, जो साइंस के लिए सही नहीं होता है। वो इंग्लिश चलेगा, साइंस ये इंग्लिश में चलेगा, और कोई बात नहीं है, ये गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, ये सब होता रहता है। तो अब आइए, ट्रांसलेशन मेथड क्या है जो हम लोग नहीं समझ पाते हैं, समझना चाहिए। ट्रांसलेशन मेथड में क्या होता है, जैसे अब कोई लैंग्वेज है, इंग्लिश का लैंग्वेज है, चाहे उर्दू है, हिंदी के बच्चे हैं, सर उर्दू पढ़ा रहे हैं, तो उसमें ट्रांसलेशन मेथड में क्या होता है कि उर्दू की बातों को आसानी से, बहुत आसानी से आप उस बच्चों को समझा दें। किस भाषा में समझा दें, बच्चे किस इन्वायरमेंट से गुजर रहे हैं, बच्चे का इन्वायरमेंट क्या है, माता पिता का एजुकेशन है या नहीं है, बच्चे का स्टैंडर्ड क्या है, बैकग्राउंड क्या है, उसका नॉलेज क्या है, तो उस लेवल को देख करके हम लोग ट्रांसलेशन मेथड का प्रयोग करते हैं। हम लोग कहते हैं कि इस तरह पढ़ाइए, उस तरह पढ़ाइए, ये चीज़ नहीं होती है। ट्रेनिंग में ये भी बताया जाता है कि यदि बच्चे जिस इन्वायरमेंट से आते हैं, जैसे इंग्लिश इन्वायरमेंट से हैं, तो यू आर फ्री टू स्पीक इंग्लिश। इफ़ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम द रूरल एरियाज, यू कैन स्पीक द हिंदी। If the students are not understanding the Hindi language, then you are free to speak the Bhojpuri in the classroom. And it is not, I am not speaking, it is all over the India. This rule is running all over the India. It is called the mother tongue. And you know, teaching में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है मदर टंग को। मदर टंग मीन्स नॉट अ भोजपुरी, मदर टंग मीन्स the language is spoken by the students, it is called the mother tongue. And the students who try to speak the other language, it is not the mother language. Mother language means the student's mother speaks the language, it is called the mother language, and the students are speaking that are called the modern language. It means mother language means English, Hindi, Bhojpuri, Nepali, Chinese, etc. But when we talk about the mother tongue, so everyone understand that sir is speaking and a student is speaking about the Bhojpuri. Mother tongue means not the Bhojpuri. Translation method. Next है direct methods. You should know direct method is called the natural methods. Direct methods क्या है, जैसे आप जहाँ जा रहे हैं, जहाँ पढ़ा रहे हैं, जैसे आप you are going in the English medium schools, it is your responsibility that you should speak the English language. But the matter is not so that the students are not understanding the English, and we should not try the other language. We should try the other language, and we should try the language in which language the students are understanding your matter. Fifth is the lecture methods. When we go in the classroom
and take out your books and start the speaking. That is called the lecture methods. Lecture methods are not suitable in our classes till 10th. After secondary and in colleges, you can use these methods. It will be better. Next, what is a style? It is my question. What is a style? स्टाइल क्या है? स्टाइल क्या है? रूप रंग बना लें, नहीं 1 किलो पाउडर मुंह में लगा लें, नहीं यही ना है? यही ना रूप रंग है, स्टाइल यही ना है। आज चलें तो लगे कि हाँ कोई देख रहा तो करे हाँ ये अनुभवी आदमी आ रहा है, ये स्टाइल होता है। स्टाइल यही ना है। स्टाइल क्या है? रूप रंग बनाना ही स्टाइल है। इतना लिपस्टिक लगाइए कि अब क्या था ये, सॉरी ये कृष्णा मैम, कृष्णा सर, तो उन्होंने रूप रंग बनाया था, ठीक ना? तो ऐसा नहीं कि वो स्टाइल वो ठीक है, उसका जिस प्रोफेशन में जो रहता है उसका स्टाइल चलेगा, लेकिन हम लोग जिस प्रोफेशन में है इसका स्टाइल क्या है? इसका स्टाइल क्या है? हाँ, हाउ टू टीच इन वेरी इजी वे that students can understand very easily. It is the style. नहीं बस जूता पहन लिए, अब दिखा देना है क्लास में। अब देखिए वो साहबुद्दीन सर पढ़ाते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हैं ना, उनका वो क्या करते हैं क्लास में? एक्टिव रहते हैं, पहाड़ के बारे में बताते हैं, लेकिन ये नहीं कहते हैं कि चलिए पहाड़ घुमा दें। तो क्या है, प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं, प्रैक्टिकली हिस्ट्री में क्या होना चाहिए सर, ज्योग्राफी में क्या होना चाहिए? जगहों को घुमा करके दिखाना चाहिए ना, स्टूडेंट को घुमा करके जगह दिखानी चाहिए, ताकि बच्चे पढ़ने से ज़्यादा क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, देखने से जो प्रक्रियाएं कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, स्टाइल को आप मेथड्स कह सकते हैं। अंतर है, जो हम लोगों का टॉपिक क्या है, टीचिंग एंड लर्निंग स्टाइल है, उसको आप मेथड्स भी कह सकते हैं, टीचिंग एंड लर्निंग मेथड्स। बट देयर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन मेथड्स एंड स्टाइल। मेथड्स क्या है? जो बच्चों को डेवलपमेंट करने के लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं, जिसके अनुसार हम लोगों को पढ़ाना चाहिए, वो मेथड्स है। और उस मेथड्स को सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है, उस मेथड को आते हैं, और उसको और आसान बना देना स्टाइल है। और समझा गया ना स्टाइल क्या है? ठीक। टाइप्स ऑफ द टीचिंग स्टाइल क्या है? वो जो काइंड्स था टीचिंग स्टाइल में, हम लोग 2 चीज़ पर बहुत ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले इंग्लिश मीडियम, देखिए ये जो है एक इस इंग्लिश मीडियम स्कूल के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसको इंग्लिश बहुत अच्छा हो जाता है। एक बार एक बच्ची जो स्टूडेंट थी इंग्लिश मीडियम की, उसका इंग्लिश बहुत अच्छा था, उसकी शादी हो गई कम पढ़े लिखे लोगों से, कि जैसे धनिक लोग होते हैं ना। अब वो लोग क्या करता है, पढ़ाता नहीं है, सॉरी पढ़े लिखे नहीं देखता है, धन दे करके लड़की की शादी कर दी जाती है। वो पढ़े लिखे लड़की की शादी हो गई किसी धनिक घर में, रमाकांत सर शिकारपुर के आसपास में धनिक लोग हैं, तो उसी जैसे तो उसकी शादी हो गई धनिक घर में। तो वो तो पढ़ी लिखी थी, इंग्लिश जानती थी, लेकिन बेचारी की सास पढ़ी लिखी नहीं थी। अब की लड़कियां पढ़ रही इंग्लिश, पहले की लड़कियां नहीं पढ़ती थी इंग्लिश। मौलाना जी जानते हैं, पहले की औरतें इंग्लिश नहीं पढ़ती थी मौलाना जी। मौलाना जी, पहले की औरतें इंग्लिश पढ़ती थी? नहीं पढ़ती थी। सच्चाई यही है कि वही बताएंगे सच्चाई। अब की लड़कियां इंग्लिश पढ़ती हैं,
तो शादी तो हो गई, लेकिन सास जो उसकी थी पढ़ी लिखी कम थी, तो हम लोग पतो जो गई थी इंग्लिश मीडियम की गई थी, इंग्लिश मीडियम की, तो वो तो हिंदी जानती नहीं थी बेचारी, जानती भी थी तो थोड़ा शो करती थी कि आखिर हम नया नया आए हैं तो कुछ अपना हाँ ज्ञान बढ़ा दें, आखिर आए हैं इसी जगह ना। तो क्या कि चली गई, अब खाना खाने बैठ गई तो बेचारी पानी नहीं ली थी, पानी, अब बेचारी को अब भूख लग गई होगी, नहीं काम करते करते, तो खाना खाने बैठ गई, खाना खाने बैठ गई, तो खाना खाने के बाद गौर प्यास लग गई, प्यास, तो अब बेचारी को अब कहे कि भाई अब क्या करें, सास हमारी है, तो कहे कि हिचकी आता है ना, तो वो हिचकी आने लगा, ये करिए मम्मी जी वाटर लाइए, वाटर लाइए, और वो बेचारी वाटर समझ नहीं रही है, वाटर लाइए, वाटर वाटर, अभी बेचारी वाटर वाटर चिल्ला रही है, वो बेचारी टमाटर पर टमाटर ले आकर रखेगी, खाइए, उसको नहीं समझ में आएगा वाटर तो टमाटर न रखेगी। तो आप जिस इन्वायरमेंट में है उस इन्वायरमेंट का यूज़ करना चाहिए। आप ये नहीं है कि बस हम है इंग्लिश जान रहे हैं तो हम इंग्लिश जानेंगे, हम हिंदी जानते हैं तो हिंदी, उर्दू है तो हम एक शब्द हिंदी का यूज़ वाले नहीं करेंगे, हाँ साहब एकदम उर्दू है तो उर्दू चलेगा, तो ये ऐसा नहीं होगा। नहीं तो आप खाइए टमाटर, अब बेचारी का प्राण निकल गया पानी के बगैर, टमाटर है, वाटर खरीदने की जरूरत है, कल में पानी है, अभी करे वाटर चाहिए, खा टमाटर मिलेगा आपको, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं, इसलिए कॉमन देखिए टीचर बनने के लिए है ना, सबसे बड़ी चीज़ जो आप हम आपको बताए हैं ना, साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए। आखिर ये सब चीज़ें क्यों हो रहा है, साइकोलॉजिस्ट नहीं बन रहे हैं तो आप सही टीचर नहीं हो पाएंगे। आप क्लास में जा रहे हैं, बच्चों का मन ही नहीं है पढ़ने का, आपको नहीं आज पढ़ाइए के मारेंगे तो पढ़ाइए नहीं, आपको नहीं पढ़ने का मन है बच्चों का, तो आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, आप देख लीजिए आखिर उसका मूड क्या है, वो नहीं पढ़ेगा, आप देखिए तो उसको मोड़ करके कि पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, पढ़ना ही है। आप गुस्सा जाइएगा ना, मारिएगा ना तो नहीं पढ़ेगा, लेकिन आप उसको पोलाइटली डील करेंगे, बातें मत हटा दीजिए बात कि हम पढ़ाने आए हैं, आप पढ़ाई की बातें मत कीजिए, ठीक है। उसी का नानी के यहाँ बात चालू करना दीजिए, जो बच्चा नहीं पढ़ना चाह रहा है उसी के नानी के यहाँ बात चालू कर दीजिए, और 2 मिनट के बाद अब आ जाइए बोर्ड के पास, अब उसका दिमाग शांत हो जाएगा, अब वो कहेगा हाँ, जब आप कहिएगा ना पढ़ने के लिए तब पढ़ेगा। ये चीज़ होती है, आप लोगों के लिए नहीं, बड़े लोग, हाँ आप लोग जैसा कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रही हैं, हाँ बहुत अच्छा कर रही हैं। तो टीचिंग स्टाइल समझ में आ गया ना, टीचिंग स्टाइल होता है क्या है, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, साहब सर क्लास में चले गए तो समझते हैं कि बच्चा आया है घर से खाली नहीं आता है, खाली दिमाग लेकर थोड़ी आता है, उस सब दिमाग आपसे ज़्यादा भरा रहता है। हम समझ लेते हैं ये बर्तन है खाली, जितना पढ़ा दे, नहीं वो क्या जो नहीं होना चाहिए, वो बच्चा खाली नहीं रहता है, आपसे ज़्यादा भरा हुआ रहता है, कहीं से ऐसा ज्ञान रखता है कि लगेगा कि हम पर भी भारी पड़ जाएगा। तो हम लोग क्या समझ लेना चाहिए, वो ज्ञानी है, पढ़ा लिखा है, लेकिन हम लोगों का भी तो कुछ जो सिलेबस है पढ़ाना है तो उसको आगे तो बढ़ाना है। तो हम ये नहीं समझ लें वो खाली बर्तन आया है, किताब उठाए और पढ़ाना चालू कर दिए, ठीक ना। रमाकांत सर जैसे आप मैथ पढ़ाना चालू कर रहे हैं, ठीक है, ट्रायंगल बना रहे हैं, ट्रायंगल पढ़ा रहे हैं, और किसी बच्चा को समझ में नहीं आ रहा तब क्या करेंगे। हाँ कोई बच्चा से करे सर हमको समझ में नहीं रही क्या है, तो आप क्या समझाएंगे, दूसरे ट्रैक पे ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, हाँ मैंने कौन ट्रैक पर लाएंगे, हाँ ठीक है। तो ये पहले जवाब का नहीं दे रहे कि बाद में दे रहे हैं, देखिए हर आदमी का
कुछ मेरिट्स होता है, मेरिट्स होते हैं और कुछ डीमेरिट्स भी होता है, ठीक है ना। तो हम लोगों को डीमेरिट्स पर ध्यान नहीं देना चाहिए, मेरिट्स पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना साहब सर। क्या बच्चे हैं या हम लोग हैं, मेरे डीमेरिट्स हर चीज़ में होता है। जैसे ये मेथड्स जैसे जो बनाया गया है, इतना सोच समझ करके जो वैज्ञानिक लोग होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उस मेथड्स को बनाते हैं, उस मेथड्स में भी मेरिट्स डीमेरिट्स होते हैं। तो हम लोगों में क्यों नहीं होगा, होगा ना। तो हम लोग जैसे कुछ समझदार लोग होते हैं तो हम लोग समझ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग बच्चा है नहीं समझता है तो क्या करते हैं, उसको समझते हैं चलो बच्चा ही रहे, काम चलेगा। तो मेरिट्स क्या होता है, डीमेरिट्स क्या होता है। सबसे पहले मेरिट्स वो होता है जो आदमी का, जैसे आप किसी चीज़ का काम को, किसी चीज़ पर काम कर रहे हैं, आप सही तरीक़े से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, वो मेरिट्स होता है। डीमेरिट्स क्या होता है, जैसे आप करना नहीं चाह रहे हैं या सिस्टम आपसे चाह रही करवाना लेकिन आप समझ जा रहे हैं कि क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, वो होता है आपका डीमेरिट्स, ठीक है ना। तो कुछ जो स्टाइल है, इसमें लेक्चर का स्टाइल, जैसे आप क्लास में जा रहे हैं उसका बहुत बड़ा डीमेरिट्स भी होता है, मेरिट्स भी होता है। जैसे हम लोगों को क्लास में सबसे पहले तो लेक्चर का स्टाइल जो होता है वो नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कम होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि उसमें क्या होता है, बच्चे केवल सुनते हैं, आप कह रहे हैं सुन रहे हैं, वो पैसिव होते हैं। पैसिव मीन्स दे आर नॉट एक्टिव एंड केवल चुपचाप बैठे हैं सुन रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक्टिव होते हैं। बच्चों को समझ में आवे या नहीं आवे, हम लोग को समझ में जरूर आ जाता है, आता है ना। कोई भी चैप्टर आप पढ़ाइए, बच्चों को समझ में आए नहीं आए, लेकिन हम लोग समझ जाते हैं। इसलिए समझ आते हैं कि आप एक्टिव हैं, बच्चे एक्टिव नहीं हैं, वो चुपचाप बैठे हैं सुन रहे हैं। कुछ को समझ में आता है, कुछ को समझ नहीं आता है। आप चाह करके भी कितनाओं को समझाएंगे तो आप 60% से ज़्यादा नहीं समझा सकते हैं। इसीलिए वो जो क्लास है वो किस क्लास में होनी चाहिए, सबसे पहले हायर सेकेंडरी होता है 10+2 या कॉलेज होता है, उसमें वो लेक्चर का चलेगा, क्योंकि उसमें एडमिशन जो बच्चों का होता है, इनरोलमेंट जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। आप जाइएगा एक सब्जेक्ट में जाइएगा ना, मैथ में 100-200 बच्चे हैं, तो मैथ में तो चलेगा नहीं लेक्चर, इंग्लिश में चलेगा, साइकोलॉजी में चलेगा, हिंदी में चलेगा, उर्दू में चलेगा, ज्योग्राफी में चलेगा, मैथ साइंस में लेक्चर नहीं चलता है। जब तक आप उसको बताएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, पढ़ाएंगे नहीं, तो थ्योरी से काम नहीं चलेगा बगैर प्रैक्टिकल का। तो ये जितनी भी चीज़ें चलते हैं लेक्चर, ये आर्ट सब्जेक्ट में चलेंगे या लिटरेचर जो होता है उसमें चलेगा। डीमेरिट्स इसका क्या है कि आप बच्चों को आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ा सकते हैं। आप चाहेंगे कि 100% पढ़ाएं, लेकिन 20% पर सीमित रह जाएगा। अब उसको, जैसे आप क्लास में जा रहे हैं, हम लोग बहुत सारे क्लास में हम लोग लेक्चर का ही स्टाइल जो है यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग जाते हैं, बुक पढ़ाते हैं, लेते हैं और पढ़ाना चालू कर देते हैं। वो जो लेक्चर स्टाइल है उसमें हम आखिर नहीं चाह करके भी यदि वो कराते हैं तो आखिर उसको इफ़ेक्टिव जो होता है उसको हम कैसे अच्छा कर सकते हैं। इफ़ेक्टिव का मतलब उसको और अच्छा से हम कैसे कर पा रहे हैं। तो लेक्चर क्लास जब चालू करते हैं तो सबसे पहले हमने क्या कहा, बच्चे का, जैसे बच्चे दिमाग नहीं दे रहे हैं कि हम आज पढ़ेंगे नहीं, आप सोच रहे हैं कि ना हम पढ़ाइए के जाएंगे, तो हमने क्या कहा है कि उसी के नानी की या मामा का बात चालू कर दीजिए। नहीं तो बच्चा बात करना चालू करेगा, कुछ देर के बाद वो अपने ट्रैक पर आ जाएगा। तो बिगिनस विद द समटाइम्स फेमिलियर एंड इंटरेस्टिंग टू द स्टूडेंट्स। आप उसके साथ फेमिलियर बन जाइए, आप परिचय, जैसे आप उसका घर लगे कि हाँ सर में आपने कोई अंतर नहीं है, बातचीत कर रहे हैं और फेमिलियर हो जाएगा, ठीक है ना। और कुछ देर के बाद आप उसे उसी स्टाइल में आप पढ़ाइए जिस स्टाइल में वो फेमिलियर के रूप में पढ़ा रहे हैं। ये नहीं लगे कि सर अलग हैं हम अलग हैं, तो दिक्कत हो जाएगा। सेकेंड है स्टार्ट ऑफ द स्लोली। अब जैसे लेक्चर आप कर रहे हैं, तो लेक्चर कर रहे हैं तो अब एकदम ये ऐसा नहीं हो कि बस सुपर फास्ट बुलेट ट्रेन के जैसा चल दिया तो फिर रुकना नहीं है, स्पीड उसका चलेगा। आप बुलेट ट्रेन का स्पीड है ना, आप चल दिए तो चलना है नहीं, स्लोली आप जो भी आप पढ़ा रहे हो स्लोली पढ़ा रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग क्या है, आप
इंटरेस्टिंग करना चाह रहे हैं सब्जेक्ट को, जैसे देखिएगा आप लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं एक्टिविटी का पीरियड है, तो एक्टिविटीज़ के पीरियड में क्या होते हैं, ऑल स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड टू कम इन द क्लास ऑफ द स्मार्ट इन द स्मार्ट क्लासेस। व्हाई, व्हाट इज द रीजन? एवरी डे एंड फ्रॉम द मॉर्निंग टू इवनिंग दे अंडरस्टैंड अबाउट द स्मार्ट क्लासेस। व्हाट इज द रीजन? रीजन क्या है कि वो आता है ना, जैसे आपकी पीरियड में पढ़ रहा है कि यू आर टीचिंग इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, बट दे आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द स्मार्ट क्लास। व्हाट इज द रीजन? आखिर इसके पीछे कोई कारण होगा कि हम पढ़ा रहे हैं और वो पीरियड आते आते, एक्टिविटी का पीरियड आते आते बेचैन हो जाता है, सब खेलने के लिए या तो लैब में आने के लिए आता है ना। आखिर कारण क्या है? जो हम लोग कह रहे हैं, हम लोगों ने कह रहा है, उस चीज़ को हम लोग क्यों हम दबाते हैं ना, दबाते हैं कि नहीं चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन फिर दबाने के बावजूद भी बच्चे क्या होते हैं, उत्सुक होते हैं कि हम क्लास में आए। उसके पीछे एक ही कारण होता है कि बच्चे का इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा होता है। हम जो सिस्टम से, जिस सिस्टम से उसको बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे उस सिस्टम को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। हम उस रूप में नहीं पढ़ा पा रहे हैं कि जिस रूप में होना चाहिए, जिस स्टाइल में होना चाहिए, उस स्टाइल का प्रयोग हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए परेशानी हो रहा है। तो उसमें क्या होना चाहिए, किस चीज़ का यूज़ करना चाहिए? जैसे इंटरेस्टिंग करने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए उसमें है वीडियो का। जैसे वीडियो होता है, ये स्मार्ट क्लास में क्या होता है, स्मार्ट क्लास में ये आप चालू कर दीजिए वीडियोज़, ये गेट बंद कर दीजिए, 2 घंटा के बाद आइए, क्या होगा? बच्चे आपके आए और नहीं आने का कोई परवाह नहीं करते हैं, आराम से बैठ करके देखते रहते हैं, उसका इंटरेस्ट उसमें रहता है। जैसे हम लोग का इंटरेस्ट लगा रहता है, उसी तरह आप लोग का इंटरेस्ट, बच्चे का इंटरेस्ट लगा रहता है। हंसना जरूरी है, हाँ, नहीं तो परेशानी खड़ा होगी। हंसना नहीं चालू करेंगे तो बस नहीं खड़ा। चुटकुला तो बहुत सारी चीज़ें हैं अभी कहने के लिए, ठीक। तो अब देखिए, जैसे आप लेक्चर क्लास कर रहे हैं, अब बच्चे आप इधर कर रहा है उधर कर रहा है, हम जैसे लेक्चर क्लास में हम ही लोग आते हैं, जैसे लिटरेचर का जितनी चीज़ें होती है उसमें, तो उसमें क्या कीजिए, सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ें क्या है, क्वेश्चन जैसे है, आप गए पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाते समय में क्वेश्चन कीजिए। जैसे स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट करने के बाद में क्या करना चाहिए, कुछ क्वेश्चन करना चाहिए, ताकि बच्चों को भी लगे कि सर हम यदि इधर उधर कर रहे हैं तो सर हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। बीच बीच में करते रहना चाहिए, लास्ट में भी करना चाहिए। और सबसे अच्छा क्या होता है कि आप एंट्री जैसे करते हैं, एंट्री कीजिए, उसको ट्रैक पर लाइए, और ट्रैक पर लाने के जस्ट बाद आप चैप्टर स्टार्ट करने से पहले 1-2 क्वेश्चन ऐसा कर लीजिए जो उस चैप्टर से रिलेटेड हो। बच्चों को लग जाएगा कि पता नहीं है, क्वेश्चन पता नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर इस चैप्टर में मिलेगा, तो उस बच्चा को क्या करेगा, ध्यान से उस चीज़ को पढ़ेगा। तो इन द स्टार्टिंग एट द टाइम ऑफ द एंट्री, व्हेन यू गो इन द क्लासरूम, you should ask the question. Second thing, when you start the chapter, you should also ask a question. And third, in the end of the chapter, you should also try to ask the question, so that students will give the attention in the classroom, and they will prepare the answer of your question, so that they won't go here and there and don't take more than the chapters. डेमोन्स्ट्रेशन मेथड्स क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेशंस में क्या होते हैं? ये डेमोन्स्ट्रेशन का ही अर्थ होता है प्रदर्शन करना। तो डेमोन्स्ट्रेशन में क्या है कि हम गए, आपको बोले ऐसा जाना है कि जाने के समय बच्चों को लगे कि हाँ ये सर आ रहे हैं, सर के पास टेंशन नहीं है आना, तो क्या कैसे जाए? ऐसा ना मुंह बना लें, ऐसा रंग रूप बना लें कि बच्चे जाने से ही आप गए तो आप 50% रेडी भी है पढ़ने के लिए, तो 50% और भी गायब हो जाए। ये ऐसा करें, इस रूप में जाएं कि आपको लगे बच्चे, जैसे आप 50% पढ़ने के मूड में हैं तो आप जा रहे हैं
तो 50% और ऐड करना है। तो ये होता है डेमोन्स्ट्रेशंस। तो अ पर्सन हु शोज हाउ अ पर्टिकुलर पीसेस ऑफ द इक्विपमेंट वर्क, हाउ टू क्राफ्ट इज द फॉर्मेट। कोचिंग, that is the coach. Demonstration means coaching. It is a form development in which an experienced persons called a coach support a learners. कोच में क्या होता है, जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं तो कोच क्या होता है, सब एक्सपर्ट होता है, करके बताता है और आपको वही सिखाता है। जैसे कोच एक्सपर्ट हो गया, आप क्या करेंगे, वो जाएगा, ये तो लेक्चर तो नहीं देता है कोच। कोच क्या करता है, लेक्चर नहीं देता है, वो करके बताता है कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। नहीं तो वो कहेगा कि आ रहा है बॉल तो मारो छक्का, तो मारने से कहने से नहीं होगा, वो मार करके बताता है। वो अपने मेहनत करके उस चीज़ को प्रदर्शन करके दिखाता है, तो बच्चे क्या करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। वही काम हम लोगों का है। हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को भी क्या हो, कोच के जैसा हम लोगों को करना चाहिए। तो अब ये जो हुआ टीचर सेंटर्ड स्टाइल था। नेक्स्ट है स्टूडेंट सेंटर्ड स्टाइल, जो बहुत ज़रूरी चीज़ें होती है। हम लोगों ने भी ट्रेनिंग किया है, तो ट्रेनिंग समय में बताया जाता था कि जो टीचर सेंटर्ड जो स्टाइल है आप यूज नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन स्टूडेंट सेंटर्ड स्टाइल है वो बहुत ज़रूरी होता है एजुकेशन के क्षेत्र में। उसमें क्या होता है, टीचर सेंटर्ड स्टाइल में होता है कि टीचर क्या करता है, वो अपना सारा चीज़ एक्टिव रहेगा, वो जो कहेगा वैसा करना है। चुप तो चुप, हिलना नहीं है तो हिलना नहीं है, टीचर की आज्ञा उसमें चलेगा, वो मालिक है। लेकिन स्टूडेंट सेंटर्ड स्टाइल में क्या होता है कि स्टूडेंट को फ्री कर दिया जाएगा, ग्रुप बना देंगे, वो क्वेश्चन करने के लिए फ्री है, ग्रुप डिस्कशन होगा। उसमें क्या होगा कि जैसे कुछ डल्स होते हैं क्लास में, सब बच्चे तो एक जैसे होते नहीं हैं, जो आप हमारे कहेंगे क्या आप जान रहे हैं। किसी बच्चा को नहीं भी कहिएगा बोलने के लिए तो वो 4 शब्द बोल सकता है। जैसे आप कहिएगा चुप चुप, तब तक वो 5 को बोल देगा। लेकिन कुछ को आप कहिएगा बोलने के लिए ना, 5 बार कहिएगा तो वो हो सकता है 2 शब्द बोले। ऐसे होते हैं कुछ बच्चे, ऐसे होते हैं आप लिखने के लिए माना कीजिए, तब तक वो कुछ लिख देगा। किसी को पीटते रहिए तो नहीं लिखता है। तो हर तरह के बच्चे क्लास में होते हैं। उसमें क्या करना है कि ये नहीं है बस तेज को तेज के साथ में कर देना है, ऐसा नहीं है कि तेज को तेज के साथ कर देना है। सब बच्चों को सब में मिला करके ग्रुप बना देना है। उससे क्या होता है कि जो तेज बच्चा है उससे छोटे को सीखने को मिलता है। वो क्या करेगा, आप अकेले कितने को पढ़ाएंगे, एक को आप 30 क्लास बच्चे हैं तो 30 को आप अकेले पढ़ाने में परेशानी खड़ा होगी। लेकिन उसमें 15 तेज है, 15 डल होगा, 15 से तो कम डल नहीं होगा, 15 हो सकता है, 15 से कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो 15 को पढ़ाता है तो एक पर एक चल जाएगा। तो वो टीचर स्टूडेंट सेंटर्ड स्टाइल हो गया कि वो एक पर एक पढ़ रहा है तो वो जल्दी सीखेगा, स्पीड में सीखेगा। इसीलिए ग्रुप में हम लोग जैसे क्या करते हैं, क्लास में पढ़ाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, हल्ला करते हैं, तो हम लोग समझ जाते हैं ये क्लास सही नहीं चल रहा है, जो सिस्टम से बाहर का है। आप वो अच्छा नहीं है, आप डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, ठीक है, आप सिस्टम में ला रहे हैं, डिसिप्लिन में ला रहे हैं, वो आप नहीं सही कर रहे हैं। बच्चे एक्टिव हैं, वहाँ पर एक दूसरे से प्रश्न करेंगे, आपसे प्रश्न करेंगे, शोरगुल कर रहे हैं, समझ लीजिए कि वो क्लास जीवित है। और नहीं आप लोग कैसे चुपचाप हैं तो हम समझ रहे हैं कि सब लोग भंगवा गए हैं। लेकिन आप प्रश्न कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आप जीवित हैं, आप नमक का बोरा नहीं हैं, आप मैम हैं, सर हैं। और नहीं तो हम क्या समझ लेंगे, रमाकांत सर क्या समझ लेंगे, नमक का बोरा। ये तो हम लोगों ने टीचिंग स्टाइल हो गया। अब लर्निंग क्या होता है, लर्निंग क्या होगा, देखिए टीचिंग आपको कराना है और लर्निंग भी आपको जानना है। बच्चों को कुछ नहीं जानना है, बच्चे का काम नहीं है वो आपको, आप क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, आप उसको कैसे सिखाएंगे, उसका काम नहीं है, सारा काम आपका है। तो टीचिंग तो हो गया कि कैसे हम लोग टीचिंग करेंगे। लर्निंग क्या होता है, अब बच्चों को आप टीचिंग में है कि आप किस तरह से पढ़ाएंगे, यही ना। टीचिंग में क्या होता है कि आप बच्चों को आप कैसे पढ़ाएंगे, ये होता है टीचिंग में।
अब लर्निंग में क्या होता है, आप सिखाएंगे कैसे बच्चों को कि आप जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चे सीख पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, वो आपको, ये होता है लर्निंग। जैसे हर टीचर को पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके को एक जैसा गुण होता है, नहीं होता है। हर टीचर का क्वालिटी अलग होता है, वो सब लोगों को पढ़ाने का स्टाइल अलग होता है। उसी तरह बच्चों को भी सीखने का, हर बच्चा का अलग अलग क्वालिटी होता है सीखने का। आप किसी को एक बार कहिएगा वो सीख लेगा, किसी को 5 बार कहिएगा नहीं सीख पाएगा। तो जिस प्रकार हर टीचर का पढ़ाने का अलग अलग स्टाइल होता है, उसी तरह हर बच्चा का सीखने का एक अलग अलग तरीका होता है, वो होता है लर्निंग। और बच्चा सीखेगा कैसे? जैसे आप क्लास में गए तो क्लास में जाने के समय सबसे पहले एक और चीज़ ध्यान देना चाहिए, उसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। उसको कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो हर व्यक्ति में अलग अलग होता है। इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत, और डिफरेंसेस का मतलब अलग अलग। तो कहता है जितने व्यक्ति होते हैं, जो क्वालिटी उसका होता है या सबका क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे आप पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाते समय में आप उसको देख लीजिएगा, आखिर बंदा जो स्टूडेंट्स है, या तो उसको दिखने में परेशानी है, सुनने में परेशानी है, या आप जो पढ़ा रहे हैं उस समझ से बाहर की चीज़ें हैं। ये सब जो चीज़ें हैं वो सबको देखने के साथ ही जो आप पढ़ा रहे हैं, तो वो आपको आपका कहा जाएगा, आपको बेस्ट टीचर कहा जाएगा। इसलिए आप जैसे पढ़ा रहे हैं तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए आप लोग को पढ़ाएं।